Hello students and welcome. In today's lab session, we will learn about the classification of protein families and tools that help us analyze protein families. Let's talk about the learning outcomes of this lab session. At the end of this lab session, we will be able to locate and use an online browser to classify different protein families, which is ProCite. We will learn about the data access from ProCite by using gene names, motifs, and domains. And lastly, we will explore different types of data formats that the ProCite offers. Let's have a brief look at the ProCite. ProCite contains the information related to protein families, protein domains, motifs, and various other functional sites. It also provides different bioinformatics tools that help us analyze or that we can use for sequence analysis and various other genomic analysis as well. Overall ProCite helps us to annotate for different functional analysis or functional site prediction, but in this lab session, we will mainly focus on the classification, protein domain classification. Simply copy the URL and paste on any web browser. You can also use Chrome, Firefox, or any web browser, and simply paste the URL procite.xpressi.org, and this front page or home page will be opened. And in this home page, there's a brief description of what the ProCite database is, and then we have here the search option where we can search our particular, we can paste our particular entry, and on the right side you can see there are different options through which we can basically submit our entry. There are 4 different options. By documentation entry basically इसका मतलब ये है कि हम simply direct कोई भी domain name या protein name enter करके उसका data retrieve फिर later उसकी analysis कर सकते हैं. और बाय प्रो रूल डिस्क्रिप्शन मीन्स प्रो रूल बेसिकली इसका मतलब ये है कि हमारे पास हम डिफरेंट फिल्टर्स या डिफरेंट चेक्स लगा सकते हैं. जैसे लेट्स से हम डिफरेंट पोस्ट ट्रांसलेशनल मॉडिफिकेशंस या कोई स्पेसिफिक किसी कोफैक्टर की बेस पे जो है वो अपने डोमेन या अपनी प्रोटीन को स्टडी करना चाहते हैं. इसके अलावा टेक्सोनोमिक्स को बेसिकली क्लासिफिकेशन को डील करता है. एंड बाय नंबर ऑफ पॉजिटिव हिट्स बेसिकली हमारे पास आते हैं एज वी नो डिफरेंट हमारे पास कंपैरेटिव एंड प्रोटीन कंपैरेटिव या सीक्वेंस कंपैरेटिव टूल्स आते हैं. जैसे ब्लास्ट हो गया, फास्टा हो गया, तो उनसे हमारे पास जो है वो पॉजिटिव हिट्स या वी कैन से हमारे पास आ जाती हैं, मैचिंग हिट्स आ जाती हैं. तो वो मैचिंग हिट्स जो हैं वो उनके थ्रू भी जो है वो हम अपना डाटा एंटर कर सकते हैं. इसके अलावा जो है सिंपली सर्च बॉक्स में हमने अपनी डिज़ायर्ड प्रोटीन या डोमेन नेम है उसका नेम एंटर कर देना है. लेट्स से हम जिंक फिंगर डोमेन जो है उसको सर्च करना चाहते हैं. तो जैसे ही आप सर्च बटन हिट करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा. हियर वी हैव लाइक 113 डॉक्यूमेंटेशन एंट्रीज, यानी जिंक फिंगर से रिलेटेड हमारे पास 113 एंट्रीज आ गई हैं. Here are like 113 different entries. You can select any one of these depending upon the type of analysis you want to perform. So in इस lab session में हम जो है वो पहली ले लेते हैं जो कि हमारे पास ADT domain profile है. So simply click on this ADT domain profile and we will have this page, this result page. On this result page we have here, we can let's see all these रिजल्ट्स वन बाय वन. सो हमारे पास सबसे पहले आ जाते हैं डिटेक्टेड अनडिटेक्टेड जो है वो यूनिप्रोट आईडीज आ जाती हैं. अब डिटेक्टेड अनडिटेक्टेड बेसिकली वो होते हैं कि हमारे पास जो 17 ट्रू पॉजिटिव्स आ गए यानी एग्जैक्ट मैच हमारे पास आ गए, जबकि हमारे पास इससे कुछ पार्शियल या मिलते जुलते हमारे पास अगर रिजल्ट्स आते हैं तो वो ऑब्वियसली फॉल्स नेगेटिव या पार्शियल में हमारे पास आ जाते हैं. इसके अलावा हमारे पास जो है वो ये लिंक जो है वो उसकी हमें ओवरऑल जो ADT डोमेन है उस फुल आर्किटेक्चर के बारे में हमें बताएगा. इसके अलावा अगर हम अपनी इस ADT डोमेन से रिलेटेड किसी तरह की सीक्वेंस फॉर्मेट, डिफरेंट सीक्वेंस फॉर्मेट्स हमें चाहिए,
जैसे MS से अगर हमें इसका चाहिए तो वो इन तमाम लिंक से वन बाय वन हमारे पास आ सकता है। अगर हमें क्लस्टर फॉर्मेट में चाहिए या प्लेन टेक्स्ट फास्टा फॉर्मेट में चाहिए तो वो वन बाय वन इन लिंक से हमारे पास आ सकता है। इसके अलावा टेक्सोनोमिक डिस्ट्रीब्यूशन यानी क्लासिफिकेशन के हवाले से यूनिप्रोट से हमें अगर कुछ इंफॉर्मेशन चाहिए ADD डोमेन से रिलेटेड तो वो हमारे पास इस लिंक के थ्रू आ जाएगा, जो कि हमें यूनिप्रोट के अंदर जितनी भी मैचिंग एंट्रीज होंगी हमारी ADD डोमेन से रिलेटेड वो सारी इस लिंक के थ्रू आ जाएंगी। और नेक्स्ट जो लिंक है वो हमें स्कैन करके देगा यूनिप्रोट के भी कि जितनी भी मैचिंग एंट्रीज हैं हमारी एंट्रीज के अगेंस्ट हमें स्कैन करके दे देगा। और लास्टली इस लिंक के थ्रू हम लिगेंड बाइंडिंग स्टैटिस्टिक्स जो है वो स्टडी कर सकते हैं, यानी व्हाट काइंड ऑफ लिगेंड बाइंड्स टू आवर ADD डोमेन or any of the matching entry. So in this lab session हम focus करेंगे domain architecture के ऊपर. So simply click this domain architecture view of Swiss broad protein matching PS51533 entry. तो हमारे पास ये नेक्स्ट पेज आ जाएगा। इस नेक्स्ट विंडो के ऊपर ये रिजल्ट विंडो आ जाएगी। इस रिजल्ट विंडो में देखें लिखा है कि हमारे पास 5 डिफरेंट प्रोटीन्स ऐसी आ रही हैं जिनके अंदर जो है वो ADD डोमेन आर्किटेक्चर मौजूद है। अब इस आर्किटेक्चर में एक ADD डोमेन है, साथ ही हेलिकेज ATP बाइंडिंग डोमेन है और साथ ही हेलिकेज CTER डोमेन मौजूद है। सो नीचे एक ड्रॉप डाउन बटन भी है। इस ड्रॉप डाउन बटन को क्लिक करने से हमारे पास जो है वो नेक्स्ट पेज आएगा जिसके ऊपर वो तमाम 5 प्रोटीन्स प्रेजेंट हैं। उन तमाम 5 प्रोटीन्स की एंट्रीज वन बाय वन मौजूद है जिनके अंदर ये ADD डोमेन आर्किटेक्चर मौजूद है। वी कैन सिंपली क्लिक these links one by one and this will direct us to UniProt page. UniProt database के अंदर फिर जो है इनकी मज़ीद डिटेल, फंक्शनल डिटेल, इनकी सीक्वेंस से रिलेटेड डिटेल और कंपैरेटिव जितनी भी डिटेल्स डिफरेंट सीक्वेंसेस के साथ या डिफरेंट प्रोटीन्स के साथ वो हमारे पास आ जाएगी। सो वी कैन सेलेक्ट एनी वन ऑफ दीज। तो इस P4611 एंट्री की जो है वो हम डिटेल मज़ीद सिंपली क्लिक करेंगे तो हमारे पास नेक्स्ट पेज आ जाएगा। अब ये बेसिकली स्कैन पेज है। स्कैन पेज का मतलब ये होता है कि हमने जो है एक क्यूरी दे देनी है और उसके अगेंस्ट जो है वो हमें उसके मैचिंग हिट्स जो है वो मैच करके देगा। यानी हम एक सीक्वेंस दे रहे हैं और हमें वो ये बता दे कि ये डोमेन जो है वो और कितने तरह की प्रोटीन्स में प्रेजेंट है। सो इस पेज पे हमारे पास अपना डाटा सबमिट करने के मल्टीपल ऑप्शंस मौजूद हैं। आप सिंपली जो है वो एक प्रोटीन सीक्वेंस सबमिट कर सकते हैं और वो जो है वो जितना भी प्रोसाइट के अंदर मोटिव कलेक्शन है उसके अगेंस्ट हमें उसकी इंफॉर्मेशन उसके अगेंस्ट स्कैन करके इंफॉर्मेशन देगा। You can also simply submit your motif sequence and you can also submit the protein sequence. In this case we have the domain sequence. Like protein sequences, ये protein sequences automatically उसने ले लिया। जैसे ही हमने जिंक फिंगर को select किया था तो automatically उसने ये sequence भी ले लिया। तो ये स्टेप 1 है। स्टेप 2 में हमारे पास चेक आ जाएगा, यानी फिल्टर लगा सकते हैं हम कि किस तरह के मोटिव इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए। तो आप इनमें से जो है वो कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल प्रोफाइल्स चाहिए, प्रोफाइल्स यानी होल डिटेल्ड मोटिव से रिलेटेड डिटेल इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप ये चेक कर सकते हैं। फिर रन द स्कैन एट हाई सेंसिटिविटी। रन द स्कैन एट हाई सेंसिटिविटी का ये है कि तमाम जो वीक मैचेस हैं वो भी हमारे पास आ जाए। तो इस लैब सेशन में सिंपली हम जो है सिर्फ हाई प्रोबेबिलिटी वाले ले लेते हैं, यानी जिनकी मैक्सिमम सिमिलैरिटी हो हमारी क्यूरी सीक्वेंस के साथ। तो स्टेप 2 में हम ये ले लेंगे और फिर जो है स्टेप 3 हमारे पास आ जाएगा कि व्हाट काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन आउटपुट इंफॉर्मेशन वी वांट टू गेट फ्रॉम दिस एनालिसिस। तो इसमें हमारे पास आ जाता है आउटपुट फॉर्मेट। ये जो ड्रॉप डाउन मेन्यू है इससे हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि हमें फास्टा फॉर्मेट में चाहिए, प्लेन टेक्स्ट में चाहिए या उसकी ग्राफिकल व्यू चाहिए, जिस तरह के भी चाहिए। तो सिंपली ये सारी चीज़ें सिलेक्ट करके वन बाय वन सिंपली स्टार्ट द स्कैन बटन जो है वो क्लिक कर दें। तो फिर हमारे पास नेक्स्ट रिजल्ट पेज आ जाएगा जिसमें सबसे पहले फास्टा फॉर्मेट हमारे पास आ जाता है। फास्टा फॉर्मेट में यू कैन सी वी हैव लाइक 4 हिट्स, 1 2 3 वी हैव 3 हिट्स। सो यानी हमारे पास 3 ऐसी प्रोटीन्स आ गई हैं
जिनके अंदर जो है ADT प्रोटीन आर्किटेक्चर मौजूद है. सो दिस इज सिंपली द फास्टा फॉर्मेट वेयर वी हैव द सीक्वेंस एंड प्रोटीन आईडी उसकी जो हमारे पास मौजूद है. और अगर हम इस पूरे आर्किटेक्चर की जो है वो ग्राफिकल व्यू देखना चाहते हैं तो सिंपली जो है ग्राफिकल व्यू पे क्लिक कर दें तो हमारे पास जो है ग्राफिकल व्यू ओपन हो जाएगा, जिसमें हमारे पास ये डोमेन आर्किटेक्चर, फुल डोमेन आर्किटेक्चर मौजूद है. 1479 अमीनो एसिड जिसमें मौजूद हैं और हमारे पास 1, 2 एंड 3 तीन जो डिफरेंट हमारे पास हिट्स आ रही थी उनकी भी जो डिटेल हमारे पास मौजूद है, जिनमें उनकी पोजीशन मौजूद है अमीनो एसिड वाइज. और ओवरऑल ये स्कोर बेसिकली ये बैकएंड पे स्कोर हमें कैलकुलेट करके देता है, जिसका मैक्सिमम स्कोर होता है उसकी उतनी सिमिलैरिटी होती है. तो स्कोर की बेस पे जो है वो रिजल्ट्स भी हम चेक कर सकते हैं, यानी फिल्टर आउट कर सकते हैं. सो ये ओवरऑल हमारे पास डोमेन आर्किटेक्चर हमारे क्यूरी सीक्वेंस का था और ये 1 बाय 1 हमारे पास आ गई हैं तीन ऐसी मैचिंग हिट्स जिनके अंदर ये आर्किटेक्चर मौजूद है, जिसमें हमारे पास हेलिकेज ATP बाइंडिंग डोमेन आ जाती है और हेलिकेज CTER भी आ जाती है. सो दिस वाज ऑल अबाउट today's lab session where we can simply enter or we can simply submit the domain name and we can see that कौन सी प्रोटीन्स के अंदर जो है वो particular domain हमारी मौजूद है. So this was all about the domain classification of zinc finger domain.